Good morning, students. In today's class, we will be completing chapter 6 of your geography book, which is about major landforms of the earth. In last class, we have covered the mountains. About the mountains, we have talked about the different kind of mountains, like block mountain, waterfall mountain, and we have discussed volcanic mountains also. In today's class, we will be covering about plateaus and plains, and we will also see how the land people activity of human beings are affected the landforms. What are the changes which are happening in different kind of landforms which are there, how far the human being is responsible for bringing in the changes. So this will be the focus of today's live class also. And as I have told you to solve down the doubts regarding what we have covered in the last class, we will be taking up your doubts, and we will be I will be explaining the plateaus and plains in the live class. So be prepared for that. Watch the video, read the book, and be prepared with your doubts. So let's start with the chapter. Some of the landform features which are shown in your book, in the figure given in your book, and you will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. These landforms are a result of two processes. देखिए, कहीं से जमीन उभरी हुई दिखती है, कहीं आपको खाइयां दिखती हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनके बारे में कि जो एविलेटेड लैंड्स होती हैं उनको हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, जो एकदम समतल भूमि है, जो बिल्कुल प्लेन है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके क्या यूजेस हैं, हम सब कवर करेंगे. लेकिन ये जो आप वेरिएशन देख रहे हैं, लाइक कहीं पर जो है लिथोस्फीयर जो है वो एविलेटेड है, कहीं डिप्रेशंस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि ये किस वजह से होता है. हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, बट लेट्स जस्ट टेक अप दिस थिंग वंस अगेन, दैट विद इन द अर्थ अ कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. यू ऑल नो, we have learned about the lithospheric plate and the movement which keep on occurring in this lithospheric plate, and because of these movements there are changes, some are external forces and some internal forces are there which keep on bring change in the upper crust of the earth. So the first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. अगर मैं आपसे पूछूं ये internal processes क्या होते हैं, तो can you tell me what are these internal processes? जो lithospheric plates हैं, कभी collide करती हैं, कभी volcanoes हैं, earthquakes हैं. तो these are the internal, we have read about the endogenic forces. So these internal processes, they leads to the upliftment and shrinking of the earth's surface at several places, right? And because of this shrinking and upliftment, we get this landforms like plateaus, we get mountain range, we get valleys, right? The second or the external process is a continuous wearing down and rebuilding of the land surfaces. Like the wearing away of the earth surface is called erosion. आपको पता है erosion और deposition की process जो है वो continuously चलता रहता है. surface के ऊपर जो changes आते हैं वो ये इस erosion process, और फिर जो चीजें erode करके ले आती है, wind लेके आता है, water लेके आती है, और उसकी जब deposition होती है तो एक नया type का structure आपका बन जाता है. So these two processes are carried out by running water, ice and wind. So what are the sources which make external process, which make erosion and deposition possible? These are water, ice and wind. Broadly we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and plain. हमने पढ़ना mountains, plateau और plain. तो basically जो इनमें difference है वो उनकी एविलेशन यानी ऊंचाई पे, या जो उनकी स्लोप्स हैं उस पर डिपेंड करता है. क्लियर? यहाँ तक आपको मैंने समझाया कि लैंडफॉर्म जो लिथोस्फीयर है उसके ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं वो दो कारणों से हैं. एक इंटरनल प्रोसेस की वजह से हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से होते हैं. इंटरनल प्रोसेस जो है उसके अंदर आप लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट, उसके अंदर आप अर्थक्वेक्स, whatever force
which is which is acting from inside the earth and creating depressions or elevations on the crust or the lithosphere. These come under the internal processes. और जो external है उसके अंदर basically हमारा erosion और फिर deposition है. और erosion के जो factors हैं वो आपके water, ice और wind होते हैं, जिनकी वजह से या तो किसी जगह पर पहाड़ की चोटियां बन जाती हैं या फिर plateaus बन जाते हैं या plain बन जाते हैं. तो let's अगर मैं आपको ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू माउंटेन्स. आप सबको माउंटेन पता है, हम लोग हिल स्टेशन जाते हैं, स्पेशली माउंटेन्स देखते हैं वहां पर. अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. जब अर्थ का सरफेस की हाइट पे होता है, वो नेचुरली एलिवेशन होता है, उसके अंदर ऊंचाई होती है, उसको हम माउंटेन कहते हैं. द माउंटेन्स मे हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस. ऊपर से आपको पता है पहाड़ की चोटियां कैसे होती हैं, ऊपर से तो वो हमें कोन शेप में दिखती है, और नीचे जो होता है उनका जो एरिया, सराउंडिंग एरिया होता है वो ब्रॉड होता है, उसका जो बेस होता है ब्रॉड होता है. इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया. और जो आसपास का एरिया होता है उससे वो ऊंचा होता है, एलिवेटेड होता है. सम माउंटेन्स आर इवन बिगर देन द क्लाउड्स. एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकेम्स कोल्डर. ये भी हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम आता रहता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाता है. इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली frozen rivers of ice. These are called glaciers. Glaciers भी glaciers क्या होते हैं, जब बर्फ के बड़े बड़े जो है परमानेंटली पहाड़ों पर बर्फ जो है वो जमी रहती है. एक्चुअली वही मेल्ट होकर उसी में से ही हमारी परमानेंट जो ईयर लॉन्ग जो नदियां बहती हैं वही वाटर सप्लाई करती हैं. तो ये जो जमी हुई बर्फ होती है जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं. देयर आर सम माउंटेन्स यू कांट सी एज दे आर अंडर द सी. सरप्राइजिंग. सी के नीचे भी आपकी जो होती है माउंटेन्स होती है, सी जो है उसके डेप्थ में भी होती है. और कई बार यू विल बी शॉक टू नो कि जो नीचे की जो माउंटेन्स हैं जो समुद्र के अंदर हैं वो ज्यादा डीप हैं कंपैरेटिवली. जो माउंटेन्स जो हैं जो हमारे लिथोस्फीयर के ऊपर हैं उससे भी ज्यादा डीप जो होती है सी में पाई जाती है. बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, less people live in the mountain areas. Since the slopes are steep, less land is available for farming. You know that India is still, till the date, India is an agricultural country. ज्यादातर population जो है वो agriculture या agriculture based industries में ही placed है. ठीक है. अब ये जो हिमालयन टेरेन की इन्होंने बात की है, माउंटेन टेरेन की इन्होंने बात की है, उन्होंने बताया क्योंकि क्लाइमेट जो है वहां पर आपका हार्श होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, एक्सट्रीम्स में क्लाइमेट जाता है, तो कम लोग वहां पर रहते हैं क्योंकि लाइफ जो है इन कंपैरिजन टू प्लेन्स जो है लाइफ वहां पर हार्ड होती है. राइट. आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा जब टूरिस्ट सीजन होता है तो कई बार बोला जाता है कि जब लोग विंटर्स में जा रहे हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रोड ब्लॉक्स हो गए हैं बिकॉज ऑफ द हेल, स्नोफॉल, एंड यू नो दैट द वाटर सप्लाई दे फेस acute deficiency of water. You know why? Because the water get frozen over there because of the such a low temperature over there that this water is frozen. और जब पानी frozen हो गया that can't be used, so water की scarcity हो जाती है. तो life जो है in comparison to plain जो है mountain areas में, higher mountain areas में वो tough होती है. इसीलिए वहां पर पॉपुलेशन कम होती है क्योंकि जब फार्मिंग के लिए जगह नहीं होगी. आप जब आई ट्रस्ट मेनी ऑफ यू मस्ट हैव विजिटेड माउंटेन हिल स्टेशन और माउंटेनस एरिया एंड यू हैव आल्सो बीन सीन टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग आपने देखी होगी, पहाड़ को काट के कैसे सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं. तो डू यू थिंक दैट इज इजियर? आपके पास एक प्लेन हो, उस पर सीधी जमीन पे आपको खेती करना आसान है, या ऐसे पहाड़ियों पे जो टेरेस फार्मिंग होती है वो करना आसान है? समझाने का मतलब यहाँ पर मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि जो माउंटेन एरिया होता है वहां पर लाइफ कंपैरेटिवली टू दिस प्लेन प्लेन फर्टाइल एरिया, वहां पर लाइफ हार्ड होती है. इसी वजह से लोग जो है वहां पर कम रहते हैं. दे टेंड टू मूव ऑन टू द लाइक प्लेन्स, जो समतल जो एरियाज होते हैं वहां पर वो शिफ्ट करते हैं.
माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। राजस्थान के अंदर अरावली रेंज है, हम सब जानते हैं। तो माउंटेन्स जब कॉन्टिन्यूस माउंटेन्स चलती है ना एक लाइन में, बहुत लंबा एरिया कवर कर लेती हैं, तो हम उनको रेंज बोलते हैं, राइट। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडेड ओवर 100 of kilometers. The Himalayas, the Alps, the Andes are mountain range of Asia, Europe and South America respectively. Respectively से मतलब कि एशिया के अंदर जो माउंटेन रेंज है वो द हिमालयाज है, एल्प्स जो है वो यूरोप में है, एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है। सो माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप। ऐसा नहीं होता, कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता कि माउंटेन इतनी होगी। हाइट, उनकी हाइट में वेरिएशन हो सकती है, उनकी शेप में वेरिएशन हो सकती है। अब यहाँ पर आपको फोकस करने की जरूरत है। देयर आर लाइक 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स आपने छोटी क्लासेस तक पढ़ा है कि माउंटेन क्या होती है। नाउ द एडिशन टू योर नॉलेज इज दैट देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, दैट इज फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। सो जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब क्या होता है, लेट्स स्टडी अबाउट दिस। पहले तो याद रखिए जो फोल्ड माउंटेन्स होती हैं दे कैन बी 2 टाइप्स, लाइक उनको कैटेगराइज किया गया है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में और न्यू फोल्ड माउंटेन्स में। मतलब उनके ओरिजिन के हिसाब से ये ओल्ड और न्यू उनको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, द हिमालयन माउंटेन एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं ये दोनों। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि हिमालयन एशिया के अंदर है माउंटेन्स, और जो आपके एल्प्स हैं वो आपकी यूरोप की अंदर माउंटेन रेंज है, राइट। अब क्या होता है कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से, राइट, इंटरनल फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से ये जो होती हैं ये फोल्ड हो जाती है। जो धरती है या जो ये माउंटेन्स हैं ये फोल्ड होके ऊपर की तरफ को उठती हैं, जिसकी वजह से इनको फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। फोल्डिंग होती है ऑफ द सरफेस और उसकी वजह से ये एलिवेट हो जाती है, ये ऊपर ऊंचाई पे उठ जाते हैं। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं इंडिया के अंदर। यंग फोल्ड माउंटेन्स के अंदर हिमालयन माउंटेन्स है, और आपकी जो अरावली रेंज है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड में से। प्लीज अंडरलाइन दिस थिंग्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड इज द अरावली रेंज, राइट। और क्योंकि वो ओल्ड है, समझते हैं ना, ओल्ड का मतलब बहुत पहले की बनी हुई है, तो जो वियरिंग वेदरिंग का प्रोसेस है, इरोजन का प्रोसेस है, उन पे ज्यादा देखने को मिलता है और वो वर्न आउट। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो द एप्लेशियन एंड द यूरस जो है आपके नॉर्थ अमेरिका और रशिया के अंदर फाउंड की जाती है, हैव राउंडेड फीचर और लो एलिवेशन। इनकी हाइट जो है लो है, और ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। तो आपके पास 3 एग्जाम्पल हो गए ओल्ड फोल्ड माउंटेन के, और आपको यहाँ पर न्यू फोल्ड माउंटेन्स के 2 एग्जाम्पल्स आपके इस पैराग्राफ में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली 1 मार्कर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ब्लॉक माउंटेन्स। आपकी बुक के अंदर प्लीज रेफर टू फिगर 6.3. इट इज शोइंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉक माउंटेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि ये क्या अप और डाउन मूवमेंट होती है। कुछ जो टुकड़े हैं वो अप ही रहते हैं, लेकिन कुछ जो है वो आपके जो है डाउन चले जाते हैं, नीचे की तरफ हो जाते हैं। तो उसको जो एविलेटेड है, जो ऊपर है, अपलिफ्टेड ब्लॉक है, हॉर्स्ट कहलाता है, और जो लोअर ब्लॉक है ग्रेबन कहलाता है। तो ये जो हॉर्स्ट और ग्रेबन की जो फॉर्मेशन है, अप डाउन, दीज आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। इनको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, यानी ये टूटे हैं और वर्टिकुलरली डिस्प्लेसमेंट इनके अंदर आ गई है। तो जो आपकी राइन वैली है और जो वेगिस आपके वर्सेस माउंटेन है यूरोप में, वो आपके इसी तरह की ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट इज वॉल्केनिक माउंटेन्स।
as the name suggests that the mountains which are formed due to volcanic activities, volcano की वजह से mountains बनती है, rocks बनती हैं, आपने पढ़ा है rock cycle के अंदर। तो ये जो volcanic activity की वजह से, जो कि molten magma जो है, लावा जो बाहर निकलता है, उसकी वजह से जो mountains बनती हैं वो volcanic mountains कहलाती हैं। एग्जाम्पल है अफ्रीका का किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा जापान में जो है वो इन माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ let us just get through the uses of mountains. Mountains are very useful. They are the storehouse of water. बताया मैंने आपको, वहाँ ग्लेशियर्स होते हैं जो कि फ्रोजन रिवर्स होती हैं, और जब वो मेल्ट होती हैं तो ही हमारी रिवर्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। तो ग्लेशियर्स होते हैं जो कि सोर्स होते हैं हमारी रिवर्स के, वो माउंटेन्स में पाए जाते हैं। तो माउंटेन्स इंपॉर्टेंट हुई। रिजर्वर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द रिवर वैलीज एंड terraces are ideal for cultivation of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna. Flora and fauna like आपको वनस्पति जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, फूलों की या आपके जो फ्रूट्स हैं उसकी आपको बहुत ज्यादा वेराइटी जो है माउंटेन रीजन्स में मिलती है। दैट्स व्हाई माउंटेन्स आर इम्पोर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने देखा होगा माउंटेन एरियाज पे व्हेनेवर यू गो टू हिल स्टेशन यू सी कि पहाड़ियां जो होती हैं बहुत सारे पेड़ पौधों से, फ्लोरा और फना से जो है वो कवर्ड होती है। सो दीज फॉरेस्ट आर लाइक वेरी precious. They provide us with so many resources like fuel, fodder, shelter, other products like gum, timber, whatnot. They are like gums, resins. So they give us very useful resources. Next, these mountains are like tourist spots, and they provide an idyllic site. Idyllic site means बहुत ही सुंदर जो है वो दृश्य देते हैं, और लोग जो है वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो जब टूरिस्ट स्पॉट होता है तो वो इकोनॉमिकली भी हमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। यानी वहाँ लोग जाते हैं, पैसे स्पेंड करते हैं, तो लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट और लोकल्स को उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो राइज होता है। तो इस तरह से भी इम्पोर्टेंस माउंटेन्स की होती है। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। नेक्स्ट, लेट्स कम टू प्लेट्यूज। प्लेट्यू क्या होता है? ये भी एलिवेटेड होता है, लाइक जो आसपास का क्षेत्र होता है उससे ये थोड़ा ऊंचा होता है। बस डिफरेंस क्या है, एक तो इसकी एलिवेशन माउंटेन्स जितनी नहीं होती, और बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि ये ऊपर से फ्लैट टॉप्ड होता है, टेबल टाइप लाइन होता है, ऊपर इसकी पीक नहीं होती। ठीक है। और ज्यादातर जो आपके प्लेट्यूज आपको मिलेंगे, द हाइट ऑफ द प्लेट्यू वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर टू सेवरल 1000 मीटर्स। प्लेट्यूज भी माउंटेन की तरह ओल्ड या यंग हो सकते हैं, और जो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है इंडिया के अंदर वो आपका डेक्कन प्लेट्यू है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन कीनिया, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। इसके बाद द तिब्बत प्लेट्यू जो कि हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में, जिसकी हाइट है 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मेन सी लेवल। इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन दिस, राइट। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल। क्यों? अब हिमालय बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज दे आर स्टोर हाउस ऑफ रिवर्स, राइट। वाटर की सप्लाई आ रही है, फ्लोरा फना उनका इंपॉर्टेंट है, टूरिस्ट स्पॉट्स है। सिमिलरली जो प्लेट्यूज है, सबसे बड़ा इनका रीजन है दे आर वेरी रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। मिनरल्स मिलते हैं जिसके बेसिस पर आपकी इंडस्ट्रीज चलती हैं। ठीक है। तो बहुत सारे माइनिंग एरियाज इनके अंदर होते हैं, प्लेट्यू एरियाज के अंदर। African plateau is famous for gold and diamond mining. In India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in Chota Nagpur Plateau. Deccan Plateau भी extension ही है छोटा नागपुर प्लेट्यूज जो है, और वहां पर आपके मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। क्या मिलता है इंडिया के अंदर? ज्यादातर आयरन, कोल और मैग्नीज से। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप ये सब डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से पर्टिकुलर रीजन के अंदर कौन से आपके मिनरल्स मिलते हैं। इन द प्लेट्यू एरियाज देयर may be several waterfalls as the river fall from great height. In India, Hundru falls in the Chota Nagpur Plateau, जो कि रिवर सुवर्ण रेखा पर है, बहुत सुंदर है। उसके बाद जॉग फॉल्स जो कर्नाटका में है वो भी बहुत सुंदर है। ऑब्वियसली ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन के पॉइंट हो गए।
Next, the lava plateaus are rich in black soil that is fertile and good for cultivation, especially cultivation of crops, especially cotton. So many plateaus have scenic spots and they also attract tourists, as I told you. Next, coming on the next, that is plains. Plains, you know, that is a large stretch of flat land, समतल जमीन होती है. And सी लेवल से ज्यादातर ये 200 मीटर की हाइट पे होती है. एक्सट्रीम लेवल्स होते हैं, लेवल्ड होती है. और आपको एक चीज बता दूं, किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर प्लेन्स का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस होती है. बहुत ही फर्टाइल होते हैं प्लेन्स आपके, क्योंकि रिवर्स जो स्लोप से अपने साथ स्लिट वगैरह इरोड करके लाती हैं, वो यहाँ पर डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से ये जो है बहुत ही फर्टाइल जो है एरिया बन जाता है. बहुत फर्टाइल होता है. और जब फर्टाइल होगा तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होगा. जब एग्रीकल्चर यहाँ पर है, वाटर की सप्लाई अच्छी है, तो इंडस्ट्रीज भी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है वो बहुत ज्यादा मिलती है. और क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट हार्श नहीं होता, लाइफ इतनी हार्ड नहीं होती, तो पॉपुलेशन ज्यादा शिफ्ट करती है, बिकॉज दे आर गेटिंग गुड क्लाइमेटिक कंडीशन ओवर देयर, दे आर गुड गेटिंग वाटर सप्लाई ओवर देयर, दे आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ओवर हेयर. सो दे जस्ट people, the population of the plains is very very high. तो क्योंकि सारी फैसिलिटीज उनको मिल रही है. Some of the largest plains made by rivers are found in Asia and North America. एशिया के अंदर जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र है इंडिया के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है. और यंस्ती जो है चाइना के अंदर, वो प्लेन्स भी बहुत फेमस है. प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. अभी बताया मैंने आपको, देयर इज ग्रेट कंसेंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल फॉर कल्टिवेशन. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फर्टाइल सॉइल मिलती है, कल्टिवेशन अच्छी होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बनती है यहाँ पे. सो नाउ लेट्स सी द रिलेशनशिप बिटवीन लैंडफॉर्म एंड द पीपल. Humans have been living on different kind of landforms in different ways. Life is difficult in mountainous area. Plains better condition देते हैं, यहाँ पर अच्छी से फसलें उग जाती हैं, आप घर बना सकते हैं, रोड्स अच्छे बनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी होती हैं. Can you point out some difference in the way people live on different kind of landforms? Sometimes natural calamities like earthquake, volcanic eruptions, storms and flood cause widespread destruction. Huge loss of life and property takes place. By creating awareness about such incidents, we will lower the risk. ठीक है, ड्रिल्स कराते हैं आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट से लड़ना सिखाया जाता है, स्कूल से बताता है आपको, एजुकेट किया जाता है कि अगर अर्थक्वेक है तो आपको क्या करना है, ये सब आपको समझाया जाता है. यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज द लैंड एंड वाटर. क्वाइट ऑफन वी यूज द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर. ठीक है, आजकल हम गार्बेज फैला रहे हैं, कंटेमिनेट करते हैं हम एयर को, लैंड को, वाटर को, विच इज डेंजरस, बिकॉज अल्टीमेटली इफ वी आर ऑल दिस कंटेमिनेटिंग थिंग आर गोइंग टू इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, on our life. So we have to be very conscious while using the natural resources. We should try to preserve them, we should not exploit them. In that way our life will be more easy and better to live, right? So this is all which we need to do in this chapter. Trust that your doubts and go through the chapter, do watch the video, and I will be taking your doubts in the live class, right? Your doubts I am mentioning, and by now you must have learned the way of handling the chapters. That is, you have seen the lecture. After that, just give a thorough reading of the chapter, and for the doubt class, be ready with your doubts, okay? And when can you be ready with your doubts? When you have watched the video, when you have read the chapter, then only you can come up with the doubt, right? I will be explaining important topics again in the live class, but I will appreciate if you come up with your doubts regarding this chapter in the doubt class. So see you in the doubt class. Bye for now. Take care.